अपलोड नहीं हो रहा ना कुछ भी। तो स्ट्रक्चर ऑफ HIV जो है उसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग तरह का उसका क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट in case of HIV virus, and we already know that that is a pinocytic virus. Pinocytic virus का मतलब क्या है कि उसको सेल पानी की तरह पी जाता है, ठीक है। तो सेल ड्रिंक्स इट एंड ये जो ड्रिंक करता है सेल इसको हाउ इट इज पॉसिबल, इट्स अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो हाउ इट इज एंडोसाइटोसिस, बिकॉज उधर भी लिपिड मेम्ब्रेन है इधर भी लिपिड मेम्ब्रेन है, सो दोनों तरफ लिपिड मेम्ब्रेन है। so that is why it is possible that you can drink it. ओके चलिए, तो वही उसकी चीज को हम लोग एलाबोरेट करेंगे। तो जो जीनोम है उसका बेसिकली, तो अगेन सिमिलर टू कोविड-19 द जीनोम इज व्हाट, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। The genome and protein of HIV have been subject of extensive research, okay, since the discovery of virus in 1983. तो 1983 में ये वायरस डिस्कवर हो गया था एंड जिसके लिए ऑलरेडी नोबेल प्राइज मिल चुका है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दोस थिंग्स। एंड ये जो वायरस है इसको हम लोग दो अलग अलग नामों से जानते थे and ultimately one of them was given the Nobel Prize. In the search of the causative agent, it was initially believed that the virus was a form of human T-cell leukemia virus, which was known at that time to affect human immune system and cause certain leukemias. However, research at the Pasteur Institute in Paris isolated a previously unknown and genetically distinct retrovirus in patients with AIDS, which was later named HIV. So retrovirus का मतलब क्या है? Viruses with RNA as genome and reverse transcriptase, okay, reverse transcriptase enzyme, ठीक है, and reverse transcriptase enzyme, ठीक है। So ये retrovirus in patient with AIDS. Now, so that is why ये है retrovirus category and उसको since ये lysogenic phases हैं उसको अपना DNA host के साथ जोड़ना होता है, तो इसलिए उसके पास RNA है। क्या reverse transcriptase? Each virion comprises a viral envelope and associated matrix enclosing a capsid, which itself encloses 2 copies of ssRNA genome, है कि नहीं? ssRNA genome and several enzymes. The discovery of the virus itself occurred 2 years following the report of the first major cases of AIDS associated illness. तो जो डिजीज है उसके रिपोर्ट के बाद ये ढूंढा गया ना, इसीलिए जो कंप्लीट सीक्वेंस भी हम लोग अभी डिटरमिन कर चुके हैं। द एंटायर सीक्वेंस इज बीन डिटरमिन्ड, है कि नहीं? The case of HIV-1 extracted from infectious virions has been solved to single nucleotide resolution. मतलब एक एक न्यूक्लियोटाइड हमने परफेक्टली उसका डिस्कवर कर लिया है, ठीक है। नाउ इसका साइज काफी छोटा है, एक्चुअली इट्स अ वेरी स्मॉल वायरस। सो द HIV is nearly 100 nanometer in dia. Its innermost region consists of a cone-shaped core that includes 2 copies of the positive sense ssRNA genome. The enzyme reverse transcriptase, integrase, protease, and some minor proteins and major core proteins. Integrase क्या करेगा? Helps to add viral DNA to the host DNA. Okay, ये उसका इंटीग्रेज है एंड
बाकी सबका काम हम विथ टाइम जानेंगे, क्योंकि दो ये मेन है हमारा, एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्योंकि उसको डीएनए बनाना है इमीडिएटली, एंड एक वायरल डीएनए को इंटीग्रेट करने वाला कंपाउंड। ठीक है ना, जो इसका जीनोम है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द जीनोम ऑफ HIV encodes 8 viral proteins. Okay, 8 viral proteins playing essential roles during HIV life cycle. तो सिर्फ 8 प्रोटीन को ये कोड करता है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग कंपोजिशंस हैं, उसी को हम लिखेंगे। उसको थोड़ा कलर कर देते हैं। So it is composed of 2 copies of non-covalently linked unspliced positive ssRNA enclosed in a conical capsid of the viral protein P24. ठीक है, तो जो आरएनए का इमीडिएटली बाहर जो कोट है, दैट इज मेड अप ऑफ P24 which is typical of lentiviruses. तो ये उसका लेंटिवायरस होने का बने प्रूव करता है। उसके बाद the RNA component is 9749 nucleotides long. तो एक मैंने छोटा सा ये है, and bears open reading frames. ठीक है, ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब क्या है, आप डायरेक्टली उसको रीड करके ट्रांसक्राइब कर सकते हो। ओके, लॉन्ग and bears a 5' cap. This is the GTP, a poly A tail, and many open reading frames. Okay, open reading frames का मतलब जो जीन है उसका open reading frame है, means you have to start from AUG and you have to end in stop codon. तो open reading frame है ना, you have to search the AUG. Okay, it will start with AUG. Now, the viral structural proteins are encoded by long ORFs, whereas smaller ORFs encode regulators of the viral cycle. Okay, ये अलग अलग stages का regulator है। ठीक है, ORF again stands for open reading frame. Now, the single stranded RNA is tightly bound to P7 nucleocapsid proteins. Late assembly protein 6 and protein P6 and enzymes essential to the development of the virion, such as the reverse transcriptase and integrase. तो ये सब आपके उसके इमीडिएटली सराउंडिंग में होगा। लाइसिन tRNA is the primer of magnesium dependent reverse transcriptase. मतलब उसको आपको मैग्नीशियम भी देना पड़ेगा, तभी जाके वो काम करेगा। उसके बाद अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो उसको न्यूक्लियस के एक्शन से भी बचाता है। क्लियर? So the nucleocapsid associates with the genomic RNA and protects the RNA from the digestion by nucleases. किसके nucleases? Hosts. Nucleases. ठीक है? Also enclosed within the virion are VIR, वो हमने उस दिन फोटो में भी देखा था, VIR, VPF, etc. and viral protease. A matrix composed of a matrix composed of an association of the viral protein P17 surrounds the capsid, ensuring the integrity of the virion particle. This in turn
सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ होस्ट सेल ऑरिजिन। एनवेलप मतलब जो लिपिड बाइलेयर, तो लिपिड बाइलेयर जो है ये होस्ट सेल ऑरिजिन का है। ओके, the envelope is formed when the capsid buds from the host cell, taking some of the host membrane with it. It includes the glycoprotein GP120, है कि नहीं, and GP41. Okay, GP120 and GP41. So which are responsible for binding to entering the host cell? ये हम जानते हैं that this is complementary to the CD4 receptors, है कि नहीं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री टू द CD4 रिसेप्टर्स होता है। तो इसलिए जिस सेल में भी CD4 रिसेप्टर होगा, इसमें लिख लेना चाहिए एक्चुअली GP120 is complementary to the CD4 receptors and is responsible for the pinocytic entry of the HIV into the host cells. कौन कौन सा? Especially macrophages and T helper cells. Okay, so why they are only the hosts? Because they have CD4 receptors. CD4 receptor. हाँ, तो जिसके पास CD4 रिसेप्टर होगा HIV उसी को पकड़ेगा और किसी को नहीं। ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट एंड ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं, तो इसलिए अभी जितना भी वैक्सीन अटैक है तो वो इसी CD4 को टारगेट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज दैट द वैक्सीन्स आर टारगेटिंग दिस CD4 रिसेप्टर्स, क्योंकि उसी से हमारा पहचान होता है ना। सो लाइक दैट। चलिए, सो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसी चीज को हम लोग एक बार दोबारा उस फोटो को देख लेंगे, है कि नहीं। आई एम ट्राइंग टू शो यू द फोटोग्राफ। किसमें था? इम्यून सिस्टम। वही वाला फोटोग्राफ देख लेने से होगा। सो अगर इस फोटोग्राफ को हम लोग देखें तो लेट मी शो यू द फोटोग्राफ। फाइन, तो यह फोटोग्राफ देख रहे हैं। yes. सो ये हमारा फोटोग्राफ है। तो हम लोगों ने देखा सबसे बाहर अगर हम लोग जाएंगे तो अगर बाहर से अंदर हम लोग जाएंगे तो सबसे पहला होता है क्या? GP120, है कि नहीं। तो सबसे फर्स्ट आता है GP120 प्रोटीन, उसके बाद आता है GP41, है कि नहीं। तो ये हमारा सेकेंड कंसेप्ट है। 120 स्टैंड्स फॉर किलो डाल्टन। ओके, तो ये उसका हो गया। एंड उसके बाद 3 है लिपिड मेम्ब्रेन। ओके, एंड उसी लिपिड मेम्ब्रेन में ये जो हुक प्रोटीन्स हैं। उसके बाद इमीडिएटली जो अगला जो है वो है मैट्रिक्स प्रोटीन। सो दिस इज द मैट्रिक्स प्रोटीन। ये 3 है, ये मैट्रिक्स प्रोटीन है। मैट्रिक्स प्रोटीन के बाद आ गया ये प्रोटीएज, देख रहे हो, ये प्रोटीएज है। दिस इज 5। मैं सीक्वेंस से बोल रहा हूं, बाहर से अंदर। फिर उसके बाद ये जो कैप्सिड आ गया, तो दिस कैप्सिड, दिस इज 6, है कि नहीं। तो 6 हो गया। अब उस कैप्सिड के अंदर आपके फिर न्यूक्लियो कैप्सिड है,
which is 7 and उसमें आपका ये RNA आ जाएगा, so this is 8 and उसके साथ आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहाँ लिखा है देखो, यस ये है 9, सपोज ये है 10। तो ये हमारे जो बेसिक प्रोटीन्स हैं इसके अंदर के हमने डिस्कस किया, ठीक है सर। हाँ बोलो सर वो टैट क्या है? कौन सा टैट, किधर है टैट? सर न्यूक्लियो सब कैप्सिड अलग और अलग वायरल प्रोटीन आरएनए। है, दे आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना, तो उसका क्या काम है हमको देखना पड़ेगा। तो ये सब है, हम लोग बेसिकली तुम्हारे लेवल का डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए प्रोटीएज, बेसिकली प्रोटीएज चाहिए, कैप्सिड, न्यूक्लियोकैप्सिड, वायरल जीनोम, इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज 1 and 2, ओके, लिपिड मेम्ब्रेन, इतना आपके लिए चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक और पर्टिकुलर डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली वो सब साइज बड़ा है कि नहीं देखना पड़ेगा ना, ये वाला थोड़ा अच्छी जे कि तार साइज गुड़ा टिके बड़ा हेले भलरे दुसिबो, नहीं दिखेगा, छोटा साइज, चलिए तो जो है उसी को देख लेते हैं। एक्चुअली वो कहाँ रख दिया है फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सो लेट अस गो टू योर पेज, यू विल हाईलाइट इट। तो अब इस डायग्राम को थोड़ा देखा जाए अगेन, इफ यू सी फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स, तो ये हमारा क्या, हम लोग बाहर से जाएंगे तो ये डॉकिंग प्रोटीन है GP120, है कि नहीं, तो ये आपका नंबर 1 आ गया GP120, उसके बाद आ गया 2, है कि नहीं, तो 2 हो गया आपका GP41, तो ये पिन हेड है, ये पिन का बेस है। उसके बाद आ जाएगा क्या हमारा, देखो फॉस्फोलिपिड एनवेलप, कहाँ गया, ये रहा, हाँ, तो दिस इज 3। उसके बाद कौन आ जाएगा, उसके बाद मैट्रिक्स प्रोटीन P17। ये जो येलो वाला देखो, येलो वाला, यस, तो दिस इज मैट्रिक्स प्रोटीन, ये है 4। उसके बाद उसके अंदर आ जाएगा कौन कैप्सिड सा, प्रोटीन, ये ब्लू वाला, कैप्सिड। यस, तो दिस इज 5। उसके बाद आ जाएगा देखो न्यूक्लियो न्यूक्लियोकैप्सिड, ये है 6, ठीक है। तो एक्चुअली 2-4 डायग्राम देख लेने से क्लियर हो जाता है, एंड इसमें उन्होंने प्रोटीन्स का भी डिटेल दे दिया है। 7 हो गया, और तापर हमें तो पढ़े इसलिए 8 सीधा ना, वायरल आरएनए। आरएनए कहाँ है, या दिस इज 7, फिर इंटीग्रेज शायद 8 था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज शायद 9 था, एंड 10th हो जाएगा आपका ये प्रोटीज और क्या है कि नहीं, तो ये 10th ले लेंगे। सर हाँ बोलो, सर पिछले वाले डायग्राम में तो प्रोटीएज कैप्सिड और मैट्रिक्स के बीच में था। कौन सा, सर इसके पिछले वाला जो डायग्राम दिखाया था आप, हाँ अरे वो सर उसकी आपको दे, दीज आर ऑथर टू ऑथर स्पेसिफिक, समझे ना, ये सब आपका जो ड्राइंग करने वाले हैं तो वो उसको कहीं भी रख दिए होंगे और क्या, तो उसमें कुछ नहीं है। तो ये कहाँ गया तुम्हारा प्रोटीएज, तो बेसिकली हम लोग को क्या याद रखना है, ये कि कैप्सिड प्रोटीन P24 है, न्यूक्लियोकैप्सिड P7 है, ओके। तो जो हमें याद रखना है उसको देखेंगे,
ये GP120 है, ये मैट्रिक्स GP41 है, ये Matrix. P17 है। Same. ओके, जो मैट्रिक्स प्रोटीन है वो P17 है, एंड और किसी का तो नंबर है नहीं। चलिए, सो दीज आर थिंग्स विच वी हैव टू रिमेम्बर। ऐसे वेरी करेगा, और भी दूसरे फिगर में कुछ और भी हो सकता है, बिकॉज दीज आर ऑथर्स कंट्रीब्यूशंस। इधर बोल रहे हो ना प्रोटीएज, तो प्रोटीएज कहाँ है? वो तो यही है, प्रोटीएज ठीक ही तो है, इन दोनों के बीच में है। हाँ. तो उसमें प्रोटीएज कैप्सिड के अंदर है। उसमें देखिए कहाँ है प्रोटीएज। प्रोटीएज, हाँ वो उसको अंदर ले लिया यार, क्या उसका दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये सारे वर्क करेंगे ना, उसका कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये उसका एक्टिव जोन है, उसके बाद ये उसका डिफेंसिव जोन है। तो मेनली उसका ये जो, अगर हम लोग वायरस लें तो वायरस का एक ही प्रोटीन कोड होता है ना, तो इधर तो वो उन्होंने ले लिया है। और क्या, हम लोग एक और थर्ड डायग्राम चेक कर लेते हैं। लेट अस चेक अनदर डायग्राम। इसमें देख लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा होगा क्या, चलिए इतना बड़ा करते हैं। तो इसमें देखिए GP120, GP41, RNA, P17 मैट्रिक्स, लिपिड मेम्ब्रेन, P24 कैप्सिड प्रोटीन्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसमें प्रोटीज दिया भी नहीं है कि नहीं? तो वही चीज है कि वो दे आर प्रोटीन एंजाइम्स, वो कहीं भी हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ लिखे होंगे उसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। ओके, तो वी मस्ट हैव रिटन इट, तो उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। आप देखिए, द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इज टाइटली बाउंड बाय P7 न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स। ओके, ये लेट असेंबली है प्रोटीन P6 एंड एंजाइम्स, ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद इधर आ जाएगा, देखिए मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ P17, तो मैट्रिक्स प्रोटीन P17 है। फिर आ गया GP120 एंड GP41, ठीक है, ये इस पेज में था। ओके, चलिए तो उस तरफ चलेंगे। सो इधर हमारा कुछ है वायरल P24 कोनिकल कैप्सिड, ये आपका वायरल P24 है। ओके, 9749 न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, बस तो ये हमारा डिटेल है। ओके, 100 नैनोमीटर इन डाया। ओके, चलिए तो ये सब चीज हमने देख लिया। अब we will go back to the diagrams again, we will cross check the final diagram। इसको देख लेते हैं हम लोग। तो बाहर से अंदर तो कैप्सिड है, ये वाला कैप्सिड प्रोटीन है, इसको हम लोग सिर्फ लेवलिंग कर देंगे। Conical capsid. हाँ, तो ये जो है ये आपका कोनिकल कैप्सिड है P24, है कि नहीं? उसके बाद ये जो बाहर वाला है ये मैट्रिक्स प्रोटीन है P17, ठीक है। उसके बाद ये GP120, GP41, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है तो दैट इज योर P7। ओके, न्यूक्लियोकैप्सिड P7 है, तो वो आपके डीएनए को पैकेज करता है। ओके, सॉरी आरएनए को, इट इज पैकेजिंग द आरएनए। क्लियर? सो ये उसके नेम्स हैं। चलिए, सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग वो क्या करेगा डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस विल एंड द मीटिंग, so you can ask